Hello everyone, welcome back to the channel RTL Forge. I am going upload the Verilog project in my YouTube channel with VHDL code and simulation with waveform explanation. Let me some explain my Verilog project is 8 cross 8 RAM memory controller, and firstly let me some explain the what is a problem description and what is the 8 cross 8 RAM memory. Design a 8 cross 8 RAM memory using a Verilog language, and RAM full form is random access memory. The RAM contains 8 memory location. Each memory location can store is 8-bit data. Let me some simple block diagram in my project. This simple block diagram of 8 cross 8 RAM memory, and this is provide some input and output port. This is clock input pin, reset input pin, and write enable pin. This clock is provide the postage clock in my 8 cross 8 RAM memory project, and reset apply to reset is 0 high and low, and asynchronous reset signal pin. Right enable pin is a simple pin, provide the zero and low and high, बट मतलब कि ये राइट इनेबल पिन जब भी लो होगी तब कोई भी डेटा पास नहीं होगा, अगर हाई होगी तभी वो डेटा को पास करने देगा मेमोरी में. लेट मी सम एक्सप्लेन अवर डब्ल्यू एड्रेस is our memory location provide all 8 memory location in our input data, and this is our actual data in 8 bit, and this is our actual output data in our 8 bit. This is our r adder, मतलब कि दिस अवर रीड एड्रेस लोकेशन, मतलब कि जिस अपना डेटा जिस लोकेशन में राइट हुआ है उसी सेम लोकेशन में वो डेटा को रीड करेगा. वाई 8 क्रॉस 8 रैम मेमोरी, मतलब कि क्या है 8 क्रॉस 8, मतलब कि 8 क्रॉस 8 मतलब कि 8 लोकेशन है डिफरेंट, और वन लोकेशन के अंदर 8 बिट डेटा को स्टोर करना है. दिस इज सिंपल फंडामेंटल ऑफ 8 क्रॉस 8 रैम मेमोरी कंट्रोलर. Let me some explain our Verilog code using VHDL language and EDA playground. This is our simple Verilog code in my project. This is our module declaration of a module, and name of the module is our RAM 8 cross 8 memory. This simple input and output pin. Input pin is our clock, reset, write enable, read enable, address pin, and actual our data is this is our actual data in our 8 bit, and output pin from the store the data in our register, and this is our also 8-bit pin. This is simple memory location array provide some 8 different location, and और all different location में 8 बिट का डेटा अलग अलग स्टोर होगा. दिस प्रोवाइड इंटीजर आई, मतलब कि यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे. दिस प्रोवाइड सम ऑलवेज लाइन, प्रोवाइड सम पोसेज क्लॉक इन माई प्रोजेक्ट. इफ एंड एल्स कंडीशन के अंदर हमने फॉर लूप अलाउ किया है, मतलब कि ये फर्स्टली रिसेट है तो कोई भी डेटा होगा तो उसको जीरो दे दे, आउटपुट जीरो मिलेगा, मतलब कि इसके अंदर कोई भी डेटा रहना ना चाहिए, मतलब कि 8 क्रॉस 8 रैम मेमोरी रिसेट में चले जाएगी, मतलब क्योंकि अभी रिसेट पिन भी अलाउ हुई इसलिए. फॉर द आई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि कोई भी डेटा ज़ीरो होगा तो वो इस कंडीशन पे फ्लो होगा, मतलब कि फर्स्ट इज इक्वल टू ज़ीरो आई, मतलब कि 8 बिट है तो 8 से कम, मतलब कि 0 से 7 के डेटा को अलाउ करेगा ये 8 क्रॉस 8 मेमोरी कंट्रोलर. लेट मी सम एक्सप्लेन दिस फंडा. ए प्रोवाइड 1 प्लस इज इक्वल टू 2, 2+1 इज इक्वल टू 3, ऐसे 7 0 से 7 लेके एड्रेस को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, मतलब कि इसमें डेटा स्टोर होगा और इसमें मेमोरी का लोकेशन स्टोर होगा 0 0 0 1 1 0 ऐसे, मतलब. And this our else condition provide two operation, write operation and read operation. write operation फर्स्टली होगा और उसके एंड देन रीड ऑपरेशन, मतलब कि राइट ऑपरेशन में राइट इनेबल पिन जब भी हाई रहेगी तब मेमोरी एड्रेस में डेटा इन जो होगा वो डेटा स्टोर होगा मेमोरी एड्रेस में, और डेटा आउट होगा कब, मतलब जबकि रीड इनेबल पिन 1 होगी तब मेमोरी एड्रेस में से
अपना डेटा आउट में, मतलब कि मेमोरी एड्रेस में से जो डेटा स्टोर है वो डेटा आउट के लिए कोई भी कंज्यूमर या कोई भी कस्टमर को वो प्रोवाइड कर देगा, कोई भी डिवाइस में चला जाएगा। दिस अवर सिंपल ऑपरेशन ऑफ राइट ऑपरेशन एंड रीड ऑपरेशन। बेसिकली मतलब कि राइट इनेबल पिन जो हाई होगी तब वो डेटा एंट्री करेगा, और रीड इनेबल पिन होगी तब वो डेटा को रीड करेगा। दिस आर सिंपल वेरी लो कोड इन माई EDA playground, right? And let me some simple test bench code and other scenario. Let me some explain one by one. Provide some time scale and 1 ns to 1 ps. Provide the declaration of module named test bench RAM 8x8. रजिस्टर वैल्यू एंड वायर, मतलब कि यहाँ वेरीलॉग कोड में इनपुट होगा वही यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू में स्टोर होगा, और आउटपुट होगा वो वायर की वैल्यू में स्टोर होगा। दिस अवर डॉट ऑपरेशन, मतलब कि टेस्ट बेंच के सिग्नल को ये कनेक्ट करता है क्लॉक टू क्लॉक, रिसेट टू रिसेट, राइट इनेबल टू राइट इनेबल। दिस प्रोवाइड सब क्लॉक का जनरेटर, मतलब 5 ns पे है, मतलब कि 5 ns के बाद क्लॉक का रीसेट हो जाएगा 0 से 1, 1 से 0। दिस आर सिंपल प्रोवाइड सम डेटा इन रिप्रेजेंट अवर EP वेव फॉर्म एंड स्टोर द फाइल, मतलब कि फाइल में स्टोर होगा और वो डेटा को EP वेव में इजीली बता देगा हम, जैसे कि हम फिर उसको सिमुलेशन कर पाए। दिस इनिशियल वैल्यू ऑफ क्लॉक 0, रीसेट 1, राइट इनेबल पिन 0। मतलब रीसेट 1 का मतलब ये हुआ कि अभी वो रैम 8x8 है, वो अभी रीसेट में, मतलब कि कोई भी उसके पास डेटा नहीं है, अगर होगा तो भी वो 0 हो जाएगा। एंड यहाँ से अपना सिनारियो शुरू हो रहा है, मतलब कि यहाँ से अपना हम टेस्ट को अलाउ कर रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट है अवर राइट डेटा, प्रोवाइड सम दिस इज अवर डेटा AABB एंड CE। प्रोवाइड सम एड्रेस, मतलब कि 0 ये अपना एड्रेस डिक्लेयर कर रहा है 0000001 एंड 010, एंड दिस इज अवर डेटा इनेबल पिन हेक्साडेसिमल में AABBCC। एंड जब भी ये डेटा को इन करेगा तब ये राइट इनेबल पिन 1 रहेगा, एंड देन 0, फिर से 1, देन 0, फिर से 1, फिर से देन 0, एंड लास्ट में डी का डेटा स्टोर हो रहा है, एंड देन 0। दिस अवर सिंपल रीड डेटा एंड रीड एड्रेस अभी तक 0 था, अब वो हाई होगा तब सभी डेटा जो राइट हुआ है अब देन 1 बाय 1 उसको रीड करेगा। पर इसमें कोई भी डेटा की वैल्यू, यहाँ पे डेटा जो इन हुआ उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ABCCDD, पर ये डीड के ऑपरेशन में उसको अलाउ नहीं करेंगे, उसको सिर्फ रीड एनेबल पिन 1 दे देंगे और एड्रेस की लोकेशन बता देंगे, क्योंकि पहले से वो एड्रेस की लोकेशन पे डेटा स्टोर है, मतलब कि वहीं से जो वो लोकेशन देंगे वहीं से वो डेटा को डायरेक्ट कंज्यूम कर लेगा। लेट मी सम एक्सप्लेन, प्रोवाइड सम different location 001, 001, 010 and 011, and these are finish line and end of the module. Let me some explain run the program and provide some select the tools and simulation and run the program. These are simple waveform our generated in my project. Explain one by one. Let me some close and cancel कर देंगे हम। दिस प्रोवाइड सम क्लॉक 0101, दिस आवर एड्रेस पिन, मतलब कि ये मेमोरी लोकेशन है, मतलब 1 मतलब कि 000, 2 मतलब कि 010, 3 मतलब कि 011, ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा बीट में। लेट में सम, अगर देखो बाइनरी होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, बाइनरी में देखो आप 1 10 11 ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, बस ऐसे ही हम उसको बता सकते हैं। दिस इज अवर डेटा इन पिन, प्रोवाइड सम 0 AABB एंड डेटा आउट पिन अवर अभी तो क्लोज है, फिर उसके बाद 0 फिर स्टोर करना शुरू होगी अपने डेटा को। दिस अवर रीड इनेबल पिन, प्रोवाइड सम 0 to 1 एंड राइट इनेबल भी 0 की 1 वही दिखाएगा। दिस इज सिंपल रिसेट क्लॉक, प्रोवाइड सम रिसेट में कंडीशन को रिसेट करनी है वरना अनरिसेट करनी है वो बताएगा। लेट मी सम फर्स्ट टेस्ट इज अवर 000, मतलब कि रिसेट पिन अभी 1 है, मतलब कि हमारा जो 8x8 रैम है वो अभी रिसेट में, मतलब कि उसके पास कोई भी डेटा नहीं है, अगर होगा तो भी वो रिसेट में चला जाएगा और 0 प्रोवाइड कर देगा।
फिर देन अगर जब भी रीसेट पिन जीरो हो रही है फिर वो अपना ऑपरेशन शुरू कर रहा है। फर्स्टली डेटा इन मतलब कि पहले डेटा आ रहा है ए मतलब कि राइट इनेबल पिन अभी हाई हो रही है। मैंने क्या बोला था कि राइट इनेबल पिन जब भी हाई होगी तभी डेटा अलाउ होगा डेटा इन पिन में से, मतलब कि पहले डेटा पिन डेटा इनेबल पिन हाई हो रही है मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल डेटा अभी स्टोर आ रहा है ए के रूप में, मतलब कि यहाँ पे अभी राइट हो रहा है। राइट इनेबल पिन का मतलब क्या, वो राइट करेगा डेटा को ए। एंड देन बीबी फिर से यहाँ पे कंडीशन अभी क्लोज हुई तो फिर से ये जीरो बता देगा राइट इनेबल पिन। एंड देन हाई मतलब स्टोर दी बीबी वैल्यू। एंड देन जीरो रिसेट मतलब कि यहाँ पे अभी कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा। एंड देन सी सी प्रोवाइड सम वन एज मतलब कि यहाँ पे फिर से सी सी स्टोर राइट करेगा। एंड देन जीरो एंड देन डी डी प्रोवाइडेड एंड देन जीरो। यहाँ पे अपना पूरा राइट का टेस्ट राइट का जो सिनेरियो मैंने टेस्ट बेंच में समझा था वो अभी क्लियर हो रहा है। एंड देन अभी हो जाएगा रीड ऑपरेशन शुरू, मतलब कि रीड जब तक राइट इनेबल पिन 1010 हो रही थी तब रीड इनेबल पिन अभी लो ही चल रही थी। अब वो रीड इनेबल जब भी 1 होगी तब राइट इनेबल पिन लो हो जाएगी। रीड इनेबल पिन 1 हो रही है मतलब कि अभी ये डेटा को रीड करना शुरू कर रहा है। मतलब कि वही लोकेशन में के जो लोकेशन पे वो स्टोर हो गया था डेटा, वही लोकेशन से वो डेटा को रीड करेगा। मतलब कि फर्स्ट ए को रीड करेगा एंड देन बीबी को एंड देन सीसी को एंड देन डीडी को। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रीड इनेबल भी जब भी हाई हो रही है तभी ये डेटा को स्टोर कर पा रहा है, और जब भी लो हो रही है तभी वो डेटा को एज इट इज मतलब कि ए को ए के रूप में स्टोर करने का। उसके बाद बीबी स्टोर अभी नहीं होगा क्योंकि अभी पहले ए डेटा स्टोर है इसलिए। दिस सिंपल ईपी वेवफॉर्म इज करेक्टली रन इन माय 8x8 RAM project, and this is the end of this session. Thank you guys.